अच्छा देखो, so far you have studied the ERD in terms of rectangles and bubbles and diamonds, हाँ या नहीं? Yes, sir. अब देखो मैं थोड़ा सा ना स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, because that was most important, that you must know that there can be a relation, there can be an attribute that can be linked with the diamond. डायमंड से एक लिंक लगा हुआ होता है, एक एक दो तीन एट्रीब्यूट्स लगे हुए होते हैं, वी कॉल इट एसोसिएटिव एंटिटी, जेरेंट। अब देखते हैं, वो मैंने पढ़ाया क्यों था, ताकि आपको बेसिक्स पता हो। इफ somebody ask you and show you an ERD with diamond, and you must not say, I don't know, I haven't seen that. No, 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 no. We studied all those concepts, and now look for the modern ERD, how much easier the way it would be. अब देखो तो मैं बना के दिखाता हूँ। Now check. I have a table, for example, like this, and I want to make it the same one, that is line. Now check, where is the entity class name? Not inside anything, rather on the top of this box. Yes or no? This is the entity class name. Here I will keep the primary key, right? How? For example, control U R E G dash number. So now this is the entity class name. This is the primary key. If we have a composite primary key, there would be two or more attributes with the underline symbol. And now here we have name, address. So now check, this is the way we represent our entity classes in the modern modeling technique. पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. These must not be underlined, sorry. Undo. And now check, I make another table like this, and now this would be like little bit this. Then क्योंकि बाज बच्चों ने अजीब सी बात की, ठीक थी उनकी बात कि सर हम लोग बाद में भी तो ERD बनने का, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप ज़रूर बनाइएगा। वो है क्या, ये देखना ज़रा। दिस वन इज़ द कोर्स। मैंने उनको थोड़ा सा डिफरेंट बता दिया, कि मैं शेयर कर लेता हूँ ये। अब यहाँ से यहाँ पे होम, यहाँ पे आ जाएगा सी कोड प्राइमरी की। सिर्फ फर्क बताना चाह रहा हूँ कि ताकि you must know that how it is different from the other. C title, credit cards. अब नोट करो बेटा, क्या आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है? In fact, in the older case, in the model that we studied, we used to write down like this: student, then we used to draw। इसके कितने कितने वो बनते थे बताओ जरा जल्दी से, समझ में आ रहा है या नहीं, पहले तो ये बता दो भाई, बहुत Yes, खामोशी हो sir. गई। अच्छा आ रहा है। So we used to make these many bubbles or ovals, this, and we used to write down the name of the attribute, reg number, and underline, then name, sorry, name, इसके underline हटा दो, then address, sorry। और देखो इनको हम we used to connect them। So this was the older way, right? Now what I'm doing, I am not drawing any diamond between them. Rather what I'm doing, I am one step ahead. Either I will draw it like this, that
और मैं तुम्हें स्टेप वाइज के बता रहा हूँ, इसको याद रखना। इसके भी स्क्रीनशॉट्स लेते हैं 2 मिनट के बाद। लेट मी शो यू हाउ आई विल शो इट, राइट? Now check. When I relate, I do not draw a diamond, although you have seen a diamond with this kind of diagram also in the previous lecture, but I am not drawing any diamond, okay? And now I write down here, for example, one student can take no course. I told you he is taking what? Sir, he is taking, in fact, a project. So, zero to many. And one course can be taken by many, and it is one or bar, whatever you call it, or bar, right? One to many. So this was the way, and this is the way how we represent that student and course relationship. समझ में आता है? हम वहां पर क्या करते थे, यहाँ पर एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, फिर उसके साथ ये सारे। तो अब ये आसान होता जा रहा है। अब समझ आ रहा है कि अच्छा यूं भी बन सकता है। पहले बताओ, समझ में आता है? यस सर। सर ये अब लोग क्लियर है, मुझे कभी लगा नहीं। सॉरी, मैंने कहा सर क्या कह रहे हो? ये सारी क्लियर व्यू भी है, वो दूसरा वाला जो है ना बहुत ज्यादा वो मिक्स हो जाता था, क्योंकि एट्रीब्यूट ज्यादा मैं होते तो फिर ठीक वो। वजह बताता हूँ, एक वजह पता है? हाँ, एक वजह बताता हूँ, पता है क्या? In fact, in the interviews, normally we are shown these diagrams. और मैंने ये किसी और जगह पे सुना, हमारी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये जी हमने यूं पढ़ा ही नहीं था। दिस इज रॉन्ग। इनफैक्ट वी मस्ट लर्न एवरीथिंग। वंस वी आर डन विद दिस डायमंड काइंड ऑफ थिंग एवरीथिंग, देन वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। अब हमें सब आता है, ये ज्यादा मुश्किल था, ये ज्यादा आसान है। ये सुनो, इसको ड्रॉ करना वैसे मुश्किल नहीं था, अच्छा था, लेकिन ड्रॉ करना, अब ये ड्रॉ करना आसान हो गया। अब यहाँ पर एम लिख रहा हूँ ना, मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, अब जो सिंबल्स हैं, हेयर वी यूज द इंफिनिटी सिंबल, ये भी चल रहे होते हैं बहुत सी जगह। जीरो के साथ यूं चलेगा, कहीं पर आपको वन और साथ में डॉट मिलता है, डॉट। ये जो दो डॉट हैं ये बताते हैं कि जी मैं नहीं हूं मैं। मतलब आप नोट करो, अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा आसान है, यहाँ पर अगर एक डॉट है साथ में इंफिनिटी है तो ये मैं नहीं है। बड़ा मजे का। तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें सब आता है। पहले बताओ, ये बात यहाँ तक समझ में आती है? सर ये डॉट वाली नहीं समझ। समझ आ रही है सर। सर एक और चीज डॉट आपसे वाली नहीं पूछनी थी। समझ आई? मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मिनट रुको। देखो बेटा, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, इसका मतलब भी मैनी है। एक डॉट का मतलब है वन है, और अगर जीरो होता तो इसके साथ यहाँ पे जीरो डॉट डॉट, जैसे नीचे दो डॉट है, इन्फिनिटी, ये भी लिखा जा सकता है। मेरी बात समझ में आती है या नहीं? यस सर। हाँ, अब बताओ और कोई सवाल? तो वो दो ऊपर वाले से दो डॉट। ऊपर वाले को भी देख लो, ये दो डॉट्स के साथ कभी ये लगाता है और थोड़े से फासले पे वन लगा देता है। अगर जीरो है तो जीरो लगा देगा और साथ में दो डॉट। लेकिन ये मैंने बहुत रेयर देखा है, इसलिए मैं उमूमन ना इसको मैं अवॉइड कर जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये रख लो, डॉट और इन्फिनिटी, या वन और इन्फिनिटी भी देखा जा सकता है, वो भी कम है बहुत, लेकिन लोग लगा देते हैं कि जी यूं बना दीजिए, बना दो। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर है कि डॉट एंड इन्फिनिटी, और डॉट के बीच में बाजू का के बीच में दो डॉट और डाल देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी वन से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी। सो लेट मी नो, आर यू क्लियर अबाउट दिस? सर इसको Yes, क्लास sir. डायग्राम भी कहते हैं। सॉरी, सर इसे क्लास डायग्राम भी कहते हैं ना। नहीं 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 बेटा, एक बात का ख्याल रखना। देखो ये अलग बात है क्लास डायग्राम में, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा जो क्लास डायग्राम होती है ना, वहां पर क्लास के साथ उसके मेथड्स भी होते हैं, हाँ या नहीं? यस सर। तो देखो ये इसका मेथड है, ये Yes, sir. देखो वहां पे ये तीन खाने बनते हैं। मेरी बात समझे हो कि नहीं? तो देखो Yes, sir. ERD में तो हम स्ट्रक्चर की, हम तो ऊप की बात ही नहीं कर रहे थे। तो क्या यहाँ पे फिर फंक्शंस आएंगे, ये उसमें एम्बेड करेंगे और क्लास के अंदर? नो सर। तो देखो मैं इसको अनडू कर रहा हूँ। मेरी बात समझो बेटा, बात सवाल तुम्हारा बिल्कुल सही है। जब तुम लोग प्रोजेक्ट बनाओगे जिसमें फंक्शनैलिटी भी, हम तो डेटाबेस पढ़ रहे हैं ना, अब अगर फ्रंट एंड पे कोई फंक्शनैलिटी है और ये क्लास ऐसी है, तो डेफिनेटली दो चीजें बनेंगी, ख्याल रखना। एक आपकी क्लास डायग्राम होगी, और मैं प्लस लिख रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये कहें जी दोनों एक ही हैं, बिल्कुल मैं इसको नहीं कह रहा। एंड प्लस वी हैव अनदर वन दैट इज ERD। ये करो भाई, EERD। पहले बताओ कुछ बात समझ में आई कि नहीं? यस सर आ गई। अब जरा गौर करना, और जिसको नहीं आ रही बेटा बोलो प्लीज, ये खामोशी से ना बैठे रहना।
जी सर समझ आ रही है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहता हूँ। अभी एक बच्चे ने कहा कि सर देखिए ना, हम ये भी तो कर सकते हैं, फॉरेन कीज पहले ले आए। मैंने कहा बिल्कुल, जब आप अपना when you are done with the conceptual model, that is you have drawn your ERD, you are done with it. ERD, okay, fine. EERD. Then you have done with the logical data model. What are the steps of the logical data model? सर 4 स्टेप्स थे कि शो ऑल द डायग्राम्स और इस टाइप के थे एग्जैक्टली वो याद था नहीं। represent entity classes, यही था कि नहीं? classes Yes. ये representing क्या था? relationship. Very good. Represent. हाँ, very good. तो चौथा आपने Relation. और चौथा इंटीग्रेशन के बाद नॉर्मलाइजेशन। Normalization था सर. बिल्कुल ठीक हो गया। इसको मैं नॉर्मलाइजेशन समझ गया। एक सेकंड रुको, मैं कुछ गलत लिख गया और ये तुम लोग ना एंटिटी क्लासेस का एस छोटा था। एनी हाउ, और नॉर्मलाइजेशन। अब दैट गाय आस्क मी कि सर देयर मस्ट बी मेनी टू मेनी, सो देयर मस्ट बी अ टेबल। मैंने कहा बिल्कुल, यू कैन ड्रॉ अ न्यू डायग्राम। और देखो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस मस्ट सेपरेट, these two are different. Got me or not? सर सर लॉजिकल डेटा मॉडल में सर क्या चौथा स्टेप कौन सा है सर? हाँ, सर मेरे पास तो 3 ही लिखे थे। चौथा होता था डीनॉर्मलाइजेशन। सर वो तो इंटीग्रेशन वो के आपने बारे में कुछ। रिप्रेजेंटेटिव क्लासेस, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन। ठीक है, मैंने कहा था बाजू का था अगर हम ओवर नॉर्मलाइज कर जाएं, टेबल बहुत टूट जाए तो हम डीनॉर्मलाइज करते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब उस लड़के का सवाल क्या था, जरा सोचना। बोलो बेटा बोलो। सर वो आपने नहीं करवाया ना अभी? नहीं चौथा करवाया, स्टेप नहीं करवाया, बिल्कुल फिक्र नहीं ठीक करो, है। बिल्कुल फिक्र नहीं करो। अच्छा, अब उसका सवाल क्या था? सर टेबल शो कराते हैं ना मैनी टू मैनी। वेरी गुड। उसने कहा कि सर जब आप यहाँ पे ईआरडी इस वाले मॉडल में बनाएंगे, तो मैंने कहा बेटा फिर क्या करना, डायमंड के बजाय तुम यहाँ पर एक टेबल शो और करवाओगे। कहते सर वो क्या? मैंने कहा रजिस्ट्रेशन या ज्वाइनिंग। देखना आप क्या कर रहा हूँ मैं। सॉरी, ये भी आ गया। अब मैंने यहाँ पे इसके कोर्स भी लिख दिया। अब यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे लिखा रजिस्ट्रेशन या रिजल्ट, वट एवर, देख लेते हैं। देन आई मेड अ लिटिल बिगर कॉलम, क्योंकि मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखना जरा, कंट्रोल यू कर दूँ, कंट्रोल यू, एच नंबर, सी, code. Got me or not? So now you know that in fact between many to many there is a table, that is registration table. Now you can join it like this. ये तुम्हारा access, when you create the relationship in MS Access, you are doing this. Yes or no? यस Yes, सर। sir. आप टेबल बनाते हैं, you just bring this reg number on this one, you bring this one and drop on the course code. So it is like this. And if there is any attribute with the diamond, you bring it over here, like for example, let me say A, and I say control U नहीं करूँगा। Great. अरे बताओ कुछ भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले तो ये बता दो। आ Yes, रहा है sir, सर। आ रहा है। एक्सीलेंट। अब देखो मेरा बेटा, ये वाली डायग्राम मेरे लिए मजे की बनी, लेकिन अब यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट? नाउ इट वुड नॉट बी मैनी टू मैनी। बड़े मजे की बात है, यू जस्ट पुट द डेटा इन इट एंड यू विल फाइंड व्हेन यू पुट अ फिंगर on a student, reg number 999, then you get many registrations for him. Maybe he has registered 6 courses, maybe he has studied 20 courses. Yes or no? पहले ये बताओ, is it clear? यस सर। For one Yes. Yes. student you will have many registrations, but when I move back and I say that for this registration, how many students I have for this registration, one record, and let me tell you, 999-242-A, this is a record in your table. When I put my finger One. on this, how many records I'll find for the student? सही One. जवाब दे रहा है, जो भी है सही दे रहा है, ठीक है। So it would be 1. Now check. When I look
over here, it was many to many. Yes or no? When we broke down it into a when we showed the relationship, a relation with the composite primary keys of both tables, the type of relationship changed from many to many to one to many, and here again it would be one to many. I'll tell you how many, and then I'll say one. How? पहले check कर लेते हैं. So now check. If I tell you for 242, how many registrations you have? Many. Many. Very 242 सर कोर्स है ना तो उसके लिए many होगा. Very good. And if I say this registration is for how many courses? Yeah, this result is of how many courses? One. ये देखो 1 2 4. देखो इसका रिजल्ट भी देख लेना. ये देखो ये रहा. I am putting my finger on 242. So in fact, when I'll say 242, you will go there and say, sir, there is only one course. So it is there. So this is how we define, we draw our ERD. If we are clear about this, that in fact this is the bridge table, this is the gerund attribute, whatever. So आप ये कर सकते हो. ये ज्यादा आसान है उससे. अब आप देखो ये बनाने से ये निस्बतन आसान हो गया. Yes or no? Yes, sir. And Yes. if you want to make, जैसे बच्चे ने मुझे फंसाया कि सर मैं फाइनल बना रहा हूँ. मैंने कहा फाइनल बना रहे हो ना कि आफ्टर normalization, okay, go for it. You may see many diagrams, so many diagrams with the foreign key in it. So let's do it. And I'll say that okay, it is one too many. So I have taken page number here. But sir, this is wrong. बताओ क्यों? कोई बताएगा यहाँ पे क्यों मैंने गलती की और क्यों गलत है? उसने मुझसे कहा सर हम बना सकते हैं. मैंने कहा बना के दिखाओ. Should I bring right now one too many? So I'll have to take primary key of one on the many side. Should I? नो हम पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर Very लाएंगे good. इसीलिए नंबर वन टू ऊपर मैनी बना कंपोजिट प्राइमरी की बना हुआ है। Excellent, sir. नहीं, in fact आप इसको orange ही रखें. And sir, look, it is already there. There is no need to take the right number again. ये देखो, because you have made that diamond an entity class, and when that diamond was made an entity class, its table was containing the composite primary key of these two entity classes. So check, it is taking the primary keys of these two classes. Yes or no? And same is the case with this one. Sir, don't bring it over here. It is already there. Yes or no? Yes, sir. Excellent. Now check another thing. क्योंकि one to many नहीं है, मैं पहले बता दूं one to one या one to many. Now check. Here we had the. मैं भी आपसे कहूँगा इसको आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना. क्योंकि थोड़ा सा मैं भी गला शला खराब है. आज मैं कल रात को पहुंचा हूँ, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि टाइम ज़ाया हो और हम छुट्टियां करें. इसको तुम लिख लेना मेरे साथ बैठ के. यहाँ पर देखना जरा. हेयर वी हैव फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट. याद आ रहा है ना सब? मैं वही चीजें चला रहा हूँ, तुम्हें सब आती हैं पहले से. एंड दिस इज लिटिल बिट अंडरलाइन नीचे नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ से लाइन आ. प्रोजेक्ट की सिंगल की है, छोटी जगह सही है. Now write down proj ID, make it primary key. Now go down. Proj name, title. और अब यहाँ पर देखो रेज नंबर. And now check. I will make it. I will write down in front of this foreign key. So now you know very well when it is one to many or one to one. In this case, we made it one to one. याद आ रहा है आप सबको कि नहीं? Yes, sir. 1 2 1. And now check.
यस और नो? यस सर। तो अब बताओ कि ये डायग्राम इज इट डिफिकल्ट और यू कैन ड्रॉ इट डाउन? कर सकते हैं। ये ज्यादा, वेरी गुड सर, ये ज्यादा आसान है, हमें डरा रहे हैं काम का, कुछ भी तो नहीं है। बात समझ में आती है? तो यस इसका सर। पूरा नाम है डायग्राम का क्लास डायग्राम प्लस ईआरडी। नहीं नहीं, ये तो ईआरडी है ना। मैं ये कह रहा था बेटा कि अगर आपको एक और काम, चलो मैं कहता हूँ कि आपने क्लास डायग्राम बनानी है, तो क्लास में देखो, याद रखो कि देयर इज ऑलवेज डेटा एंड द मेथड्स। मेथड्स होते हैं कि नहीं होते उसमें? यस सर। तो यस सर। अगर यही चीज को हम क्लास डायग्राम बनाएं तो बनेगी यही। लेकिन फिर अभी चलो मैं अलग से बनाता हूँ यार, गलत हो जाएगा बनाना। फिर तुम इसको सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ बताओ कि बताओ, कोई मसला नहीं, पूछो। सर इसको आप ईआरडी कह रहे हैं जो आपने अभी सामने बनाया हुआ है। ये 100% ईआरडी है, मैं कह नहीं रहा हूँ, ये है। तो सर वो जो पहले आपने एक बनवाई सर थी जिसकी इनको वो भी फील्ड। ईआरडी, देखो देखो मेरी बात सुनो, ये भी ईआरडी थी, मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। लेकिन अब ये एक ईआरडी है तो ये उसकी नई फॉर्म है। अब ऐसे डिजाइन होती है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि जब तुम एक टेबल बनाते थे और तुम कहते थे कि सर ये एक टेबल है और इस टेबल के अंदर 4 कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूं कर देता हूं, ये 3 है, चलो इसका नाम है स्टूडेंट, मैं इसको लिख रहा हूं आर आर, और इसके अंदर पहला कॉलम है ए जो कि है प्राइमरी की, फिर एक और कॉलम है बी जो नहीं है प्राइमरी की, सॉरी प्राइमरी की, फिर एक और कॉलम है जो कि है सी। अब नोट करो जरा, तुम्हारे पास ये टेबल था ना, ऐसे ही था कि नहीं? यस सर। अब सोचो, मैंने तुम्हें एक और तरीका बताया कि इसी को यूं बना सकते हैं, आर ए सॉरी ए कॉमा बी कॉमा सी। पहले बताओ समझ में आया कि हाँ या नहीं, कि ये पहले सर हम ये भी तो बना सकते थे ना? समझ में आ रहा है यस कि सर। नहीं? ठीक हो यस गया। सर। अब देखो मेरा बेटा, इसी तरीके से बिल्कुल, सॉरी अब देखो मेरा बेटा, एक तरीका ये था जैसे इसका तरीका था, और एक और तरीका ये है जैसे हमने ये बनाया। तो ये पुराना तरीका था, क्योंकि हम बबल चार्ट से शुरू हुए थे, तो मुझे ये था कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट, ये कैसे टूटता है, इसके ये जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं डिराइव कैसे हो जाते हैं, तो मैंने वो सब सिखाने के लिए ये वाली कन्वेंशन यूज की। नई कन्वेंशन तुम्हें ये मिलेगी। अब तुम में से एक बच्चा भी अपने इंटरव्यू में या टेस्ट में या इंटर्नशिप के दौरान ये नहीं कह सकता कि वो तो पुराना मॉडल है सर, हमने तो देखा ही, तुमने वो भी पूरा पढ़ा और उसकी बुनियाद पे तुम इतने पक्के हो गए कि तुम्हें अब ये आसान लग रहा है, यार ये तो कुछ भी नहीं है सर, इमरान मजाक कर रहे हैं, और ये वाकई मजाक है अगर देखा जाए तो। बात कुछ समझ में आती है या नहीं? यस सर। सर इसमें फॉर्म बस, वगैरह तो इस्तेमाल नहीं होंगे सर, इसी तरह रिप्रेजेंट होंगे रिलेशनशिप। क्या कह रहे हो? सर वो क्रो फिट नहीं होता सर, वो तो नहीं नहीं इस्तेमाल नहीं, होगा अब ना देखो ये। मैं बताऊं, अब नॉर्मली मैं तुम्हें एक चीज बड़ी मजे की, अभी तुम देखना, अभी जाना और जाके बुक खोलना, उसने इसमें भी क्रो फीट यूज किए हुए हैं, मैनी की जगह भी किए हुए हैं, क्योंकि क्रो फीट पुराना सिंबल है, वो कहीं भी टिका रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि यार हम कोशिश ये करें कि हम थोड़ा सा उसको जो मॉडर्न, जो एक कन्वेंशन है ना, हम उसी को यूज करें, हम 2-2 3 दिन को मिक्स ना करें। तो इसीलिए मैं फिर ये चाह रहा था कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ पे मैनी आएगा या इन्फिनिटी आएगा, तो कोशिश करो वो बना दो। अदरवाइज मैं तुम्हें अगर सीरियसली बताऊं तो भाई साहब, यहाँ पर आप किताबों में देखोगे आपको एम की जगह ये बना हुआ मिलेगा, ये मिलेगा, यूं मिलेगा, तुम नोट कर लेना। कार्डिनलिटी रखनी हो तो हम Cardinality ब्रेक। नहीं तो एम लिख दो ना, एम लिख दो, तुम इन्फिनिटी लिख दो, वरना क्रोफीट बना दो, मसला वो नहीं रहेगा। नहीं लेकिन सर मसला ये जैसे कि यहाँ एम की जगह मैं 15 लिखना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखो इधर देखो, इधर देखो, ये 1 है ना, तो नॉर्मली क्या किया जाता है, इस 1 की जगह आप ब्रैकेट इसके आगे ना 15 ब्रैकेट में लिख देते हो। पता चल जाता है कि 1 का मतलब है लाजिम, मैंडेटरी, लेकिन ये 1 नहीं लेगा, ये कम से कम कितने लेगा? 15 नहीं सर, मैं एम की जगह बोल रहा हूँ, जो मैनी वाली साइड है जो मैक्सिमम कार्डिनलिटी है।
हाँ 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 हाँ, अगर वहां मैं 15 लिखना चाहूँ इधर तो देखो m ना तुम m के आगे ये देख लो कि एक लड़का कितने कोर्स लेगा, मैंने इसके आगे 6 लिख दिया या इसके ऊपर 6 लिख दिया, इस m को रहने दो, इसको जैसे क्रो फीट को नहीं हटाते थे ना, इस यस m या इंफिनिटी सिंबल को मत हटाना, इसके ऊपर लिमिट लगाना। तुम्हारा मतलब मैं आप समझ, अब समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, समझ गया। क्योंकि m यूनिवर्सल कन्वेंशन है, उसको मत खराब करो। उसके ऊपर तुम एक दफा और लिख दो, 0 से लेके 6 तक या 1 से लेके 6 तक, जो भी है। यहां तक समझ में आता है? यस सर, तो समझ आ बच्चों गया। ये सारा कुछ तो हो गया यस ERD। सर। अब जरा इधर वापस आओ एक लम्हे के लिए। सवाल था हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो, सॉरी। सर, ये स्टूडेंट और प्रोजेक्ट के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप है। सर, हाँ आप जिस टाइम आपने वीडियो भी बनाई थी तो उसमें जिस टाइम आपने रैक नंबर को आप प्रोजेक्ट आईडी में एज अ फॉरेन की ले गए थे और प्रोजेक्ट को स्टूडेंट पे, तो सर वो इशू आ रहा था, वो अभी भी बताया, आ रहा है। वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो आएगा। मैंने बाद में उसको भी देखा है, पहले ये बनता था, लेकिन उसने बिल्कुल सही कहा। उसने कहा कि देयर इज नो नीड टू टेक इट इन बोथ टेबल्स। जबकि मैं तुम्हें सही बताऊं, हमने क्यों कहा था कि अगर हमें सर्च करना है तो यहाँ भी रेज नंबर पड़ा हो, हम यहाँ से सर्च कर लें, और अगर यहाँ पे प्रोज आईडी आया हुआ है तो हम इधर से सर्च कर लें। हमारी सर्चिंग आसान हो रही थी, लेकिन एक्सेस अलाउ नहीं कर रहा, कोई जरूरत नहीं है बनाने की, छोड़। लेकिन तुम्हारा सर क्यों नहीं कॉन्सेप्ट करते, क्या है? क्यों नहीं यहाँ पे बनाते? सर आपने क्यों, एक मिनट रुको, यहाँ पे सर आपने क्यों रखा था प्रोज आईडी? आपको सफाई दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूँ जी। अगर यहाँ पे मैंने प्रोज आईडी रखा और मैंने उसको 12 पे प्रोज आईडी रखा, और अगर इसको मैंने फॉरेन की कह दिया, तो ख्याल रखना ये एक बड़ी मजे की चीज है। सर्चिंग आसान है, रेज नंबर के अगेंस्ट फॉरेन की लो, और यहाँ से आके इसकी प्रोज आईडी में से ना इसको अब आप संभालें, ठीक है? और अगर आपके पास यहाँ पे रेज नंबर है, आप यहाँ से ढूंढना चाहते हैं, प्रोजेक्ट के अगेंस्ट रेज नंबर लें और यहाँ से आके संभाल लें। तो दोनों चीजें काम कर रही हैं, यस और नो। यस तो ये मैं कह रहा हूँ कि एक्सेस अलाउ नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि या यहाँ से वहां ले जाएं या वहां से यहाँ ले आए, या दोनों में रखें। एफिशिएंसी के लिए दोनों में रखा जा सकता है। अब जरा जो इसका सवाल था, जरा उसको भी देख लो मेरा बेटा एक लम्हे के लिए। उमर अभी कह रहा था, सॉरी, हाँ उमर ही है ना? यस सर। आपने तो कॉन्सेप्ट कंफ्यूज कर दिया। देखो मैं बताता हूँ मैंने क्या कॉन्सेप्ट कंफ्यूज किए या नहीं किए, अब ये खुद बताएगा। कंट्रोल बी, स्टूडेंट आ गया मेरे पास। यहाँ पर है रेज नंबर, ये है प्राइमरी की, यहाँ पर है इसका नेम, ये नॉर्मल है, यहाँ पर है क्लास एड्रेस। लेकिन अब यहाँ पे जब इसको आप क्लास डायग्राम कहना चाहते हो, मैंने जान के लाइन बीच में खींची है, सरहद बनाई है एक छोटी सी। वजह क्या है कि यार मैं अब यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ये क्लास डायग्राम की वो है, सिंबल वही मैनी शैनी के लगाना, वही इन्फिनिटी लगाना, बट दिस इज क्लास डायग्राम। और बताऊंगा अभी एक लम्हे के बाद कि मैंने क्यों ये बोला कि क्लास डायग्राम है। इसलिए कॉज इट कंटेन्स द वेरिएबल along with those methods that will use it। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, यहाँ से देखो ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ और यहाँ से अब आप लिखो, स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपनी ज्वाइनिंग दे सकता है, ये एक फंक्शन है, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ठीक है? तो देखो बेटा, अब ये फर्क, अब बताओ इसमें फर्क बन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, यस सर। अब देखो मैं इसको क्या कहूंगा, इसका तुम स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ये मैंने सुबह वालों को नहीं बताया, मैं उनको भेजना चाहूंगा। अगर उनके जहन में कोई ऐसा सवाल आए तो परेशान ना हो, कह रहे ये तो सर ने वो बना दी। नहीं, ये अभी फिलहाल सिर्फ एंटिटीज हैं, इनमें मेथड्स नहीं है, तो ये आपकी क्लास डायग्राम नहीं बन रही। अच्छा अभी इधर वापस आओ और यहाँ पर तुम देखो कि ये इसकी प्राइमरी की के अलावा ये तुम्हारे वेरिएबल्स हैं। मैं इसको पेंसिल से बनाना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये सब के सब वेरिएबल्स हैं, और यहां से अगर मैं फिर इसको कहूँ, ये सब इसके, आप लोग इसको क्या बोलते हो? हम लोग इसको मेथड और फंक्शन कहते हैं, आप लोग क्या कहते थे ऊप में?
फंक्शन सर मेंबर फंक्शंस। ठीक हो गया। मॉड्यूल और भी मैंने कहते हैं, इसको मैंने ये कह दिया, क्या कहते हैं? पता नहीं सर, मॉड्यूल भी कहते होते हैं। नहीं मॉड्यूल्स इंतहाई, अगर कहते हैं तो कहते हो कि मेरी नॉलेज कम है। मॉड्यूल तो एक पूरी फंक्शनैलिटी के यूनिट को कहते हैं ना, लेकिन शायद तुम किसी और सेंस में कह रहे हो, मैं इसको नहीं चैलेंज कर रहा। सर मॉड्यूल और चीज है सर। आ जाती है। फंक्शन भी मैं कहते ये हैं। कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कुछ और चीज़ है, लेकिन क्या पता है किसी और सेंस में ना कह रहा हूँ ना, बाद में मुझे मरवा दे कि आपने तो ये नहीं कहा था। अच्छा अब देखो बेटा, ये है पूरी एक क्लास मेरे सामने, स्टूडेंट, पेज नंबर, नेम, क्लास एड्रेस, ये उसकी एंटिटी क्लास का नाम, ये उसके वेरिएबल्स, ये उसके, देखो अब तुम नोट करना, इसमें से किसी डायग्राम में मैंने इसके इन मेथड्स को, फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। यस और नो? यस सर। Yes. सर वो क्लास डायग्राम में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है ना, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और ये वो चीज़। वो एक और, अच्छा वो भी बड़े, थोड़ा सा इसको रोकते। अच्छा अब देखो जरा, यहाँ पर नहीं, मैं कुछ और, इधर देखो, मेथड और फंक्शंस यहाँ पर हैं। अब इसके अंदर और भी होता है कि बाजों का जब हमने क्या पढ़ा था, नहीं तो मैंने ऊट को पढ़ाया था, ऊट पढ़ाई थी, उसमें हमने कहा था कि हम डिफरेंट लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि ये वाला फंक्शन, इसके आगे लिखेंगे प्राइवेट, पब्लिक, ये क्या है, इसका डेटा टाइप तक लिख देते हैं जब हम फिजिकल मॉडल में जाते हैं। तो इनफैक्ट ये बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है। ये सिंपलेस्ट मैंने बनाया जिसके अंदर कुछ नहीं रखा, क्लास का नाम और ये सब। अब आगे मैं दूसरा बना लूंगा रजिस्टर उसका, कोर्स का, उसमें कोर्स का कोड, कोर्स टाइटल, क्रेडिट आवर्स आ जाएंगे, उसके नीचे आ जाएगा जनाब अली फॉर एग्जांपल कोर्स रजिस्ट्रेशन, कोर्स ज्वाइनिंग, जो भी उसके मेथड्स अपने अपने होते हैं। तो होगा क्या, अब नोट करो तो मैं समझ में आएगा, दोनों क्लासें इंतहाई अलग हैं, तो सॉरी दोनों डायग्राम इंतहाई अलग हैं, ऑल्दो कि ये बिल्कुल एक ही चीज बता रही है, लेकिन क्योंकि ये एक्स्ट्रा दे रहा है तो काइंडली इसको क्लास डायग्राम बोला करो, और जिसमें एम्बेड ना किए हुए मेथड ना दिखा रहा उसको सिंपल आप EERD कह सकते हैं। ठीक हो गया? सिर्फ 5 से 10 मिनट है, इस डायग्राम को अभी ड्रॉ करो। ये सुबह को ये वाला बात जो अभी उमर ने पूछी है ना, ये नहीं थी तो आई वांटेड कि ये तुम लोग लिखो और इसकी तस्वीर भेजो फौरन उनको। बना रहे हो तुम लोग? यस सर। ठीक हो गया, बस चलो मैं यहाँ तक मैं इसको भी रोक दूंगा। बल्कि एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो ना यार और इसको बनाओ, मैं इन्हें रिलैक्स कर लूंगा, मैं थक चुका हूँ सुबह से। सर स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, भेज ले लिए? अब एक अटेंडेंस लो, साइम बैठा है? यस सर। साइम अटेंडेंस ले लो मेरा बेटा। सर आपने फिर प्रोजेक्ट में कहा EERD का, तो सर यही बना दे फिर। देखो मैं तो ये बात बताऊँ, मैं दोनों चाहता हूँ, उसकी एक वजह है बेटा, अभी तुम नहीं समझोगे, बिल्कुल नहीं समझोगे। ये चीज़ इतनी ज़्यादा ऑब्वियस है, और ये मेरे साथ, क्योंकि मैंने किसी लड़के से सुना कि सर उन्होंने ना हमें बबल चार्ट दिखा दिया, और वाकई बबल चार्ट नहीं पढ़ाया जाता, अब उसका ज़माना भी नहीं रहा, लेकिन यार वो दिखा के ना सिर्फ ये देख रहे थे कि ये डेप्थ में कुछ जानता है। ज़रूरत नहीं है बबल चार्ट की आज के ज़माने में, देखो उसने देखा। लिहाजा आप नोट करो कि ये इसको बनाओ, आप इसको बनाओ, फिर कह रहा हूँ, और जब टेबल्स फाइनल हो जाए फौरन कीज दाएं बाएं चली जाए, उसके बाद फिर ये बना देना एक और क्लास डायग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगे, नॉट क्लास डायग्राम, EERD विद दिस, विद दीज रोटेशंस, ये बना देना। ठीक है सर। ठीक हो गया? ताकि तुम्हारा Yes, sir. प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अच्छी हो, जो भी बंदा इंटर्नशिप पे या बाद में इंशाल्लाह जॉब के लिए, तुम्हारी रिपोर्ट पास होनी चाहिए कि सर मैंने ये बनाई थी, मेरा ये काम है, मुझे डेटाबेस में ये कुछ आता है, तुम्हारे पास एक अच्छी रिपोर्ट। सर ये जो आपने अभी हमें ये डायग्राम्स बना के दिखाई हैं, हम अपनी रिपोर्ट में भी इसी तरह ही डालेंगे। और दूसरा सर, जो असाइनमेंट है हमने पहले जमा कराई है, उसमें हमें पता है कि ERD में हमारे, और ERD में कुछ हमारी चीजें रह गई हैं, तो अगर देखो मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो रह गई है ना, जो रह गई है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अच्छी बात है कि हमें समझ में आ रहा है, बनाओ, दोबारा बना लो, क्या बुराई है। रिपोर्ट में वो डाल के मुझे सबमिट करवाना, जमा करवाना, जो कि तुम लोगों ने फाइनल किया है। देखो पहले तुम एक डायग्राम ये पूरी बनाओगे, फिर इस वाली नोटेशन को मैं 2 लिख रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता हो कि यार सर ने हमें ये नहीं कहा कि सिर्फ एक बनानी है, मैं कह रहा हूँ दोनों बनानी है, 1 भी और 2 भी।
और इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये मेरे उसमें नहीं आ रहा क्योंकि हमने फंक्शनैलिटी नहीं पढ़ते ना हम इसमें कर रहे हैं। और प्रोग्रामिंग वाले सर जो भी होंगे ना, जो आपको जावा पढ़ाएंगे या पढ़ा रहे हैं, वो आपको बताते हैं कि जी हमने ये फंक्शंस बनाने हैं, हमने ये इसके अंदर कोड लिखना है। तो फिर आप उनके साथ हमारे डेटा को मिला के क्लास डायग्राम बना देते हैं। तो मुझे ये 1 चाहिए, ये 2 चाहिए, 2। सर एक सवाल है। हाँ सर बोलो ईआरडी बोलो, में सब क्लासेस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्या कह रहे हो? ईआरडी में सब क्लासेस बनाएं या ना बनाएं? बिल्कुल बनाएंगे बेटा। ईईआरडी क्योंकि देखो ना, अब SS तो में हमें बात ही नहीं बनाना समझ रहे पड़ता मेरी नहीं। यार। देखो अगर ये ईईआरडी है तो भाई इसी के नीचे कुछ भी तो नहीं है, वही सिंबल्स हैं सारे। इसी के नीचे मैं यहां से कहता हूं स्टूडेंट ऐसे 2 तरह के हैं, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें तो अब सब आता है, इसलिए तो मैंने इतना टाइम लगाया है। अब तो ये सवाल ही नहीं बनता कि सर ये बनेगा या नहीं। क्यों नहीं बनेगा भाई? ये लो, आड़ा तिरछा मैंने बना दिया, जैसा भी पेन में बन सकता है। ये लो, ये ये चीज लो। जरूरी तो नहीं है ना कि हम एसएस में डालें या ना डालें, क्योंकि ये चीज की मैंने नहीं अभी है। आपको बता दिया कि एक्सेस में ये नहीं बनेगा, फिलहाल इसको मत बनाओ। ठीक है। सर इसकी हेडिंग क्या दूं? ये जितनी भी डायग्रामें बनानी है इनके ऊपर हेडिंग क्या दूं? बेटा लेबल दिया जाता है ना। अगर आपकी ईईआरडी है तो आप देखोगे फिगर नंबर 1.1 ईईआरडी ऑफ दिस टेबल नंबर 1 एंटिटी क्लास रिप्रेजेंटेड या रिप्रेजेंटेड एंटिटी क्लास ऑफ स्टूडेंट। तो उनके नीचे लेबल्स आते हैं और ऊपर आपका हेडिंग होती है कि कौन सी एंटिटी क्लास थी। नीचे आपकी अंग्रेजी। अब लड़के ये ना कर देना ना कि तस्वीर नहीं तस्वीरें बनाओ, 2-2 लाइनें लिखनी होती हैं कि क्या बना दिया आपने, ये क्या बता रहा है, इसमें कितनी एंटिटी क्लासेस हैं, वो सब लिखो। रिपोर्ट तो तभी बनेगी ना। सर मेरे कुछ वो प्रोजेक्ट के बारे में एक सवाल करना था। हाँ बोलो, कोई मसला नहीं है, कोई जल्दी सर नहीं है मुझे। सर वो स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा के आपसे मशवरा दिखाओ करना। दिखाओ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे फिर। 1 मिनट में कर देता हूँ सर मैंने ही प्रोजेक्ट में सर एक छोटी सी चीज दिखानी है, अगर 2 मिनट हो। यार। ये ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं। ये आप लोग ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। सर भेज दिए सर। ठीक हो गया, वेरी गुड। एक सर मैं शेयर मिनट, कर लूँ? 1 मिनट रुको, रिकॉर्डिंग में रोक लेता हूँ। वो ठीक कह रहा है कि हम